in the last class, we have taken a 3 cross 3 matrix and we have to obtain the values of eigenvalues and corresponding Excuse me, ma'am. eigenvectors. Yes. Ma'am, what is the due date for the submission of tutorial sheet 1? Is it uploaded on Teams by me? I No, forgot. ma'am. Okay. I will I will assign the due date in first week of November. Is that okay to all? Ma'am, you have uploaded it on LMS. Yes, it No, is it's for uploaded. section B. Ma'am, it was for section B. Okay, I will Also, upload it. I will assign tutorial 1 and 2 on Teams for section E. Okay? Okay, ma'am. And you have to upload your solution on Teams only. Okay? Okay, ma'am. Okay. So in this question, uh, in which a matrix of order 3 cross 3 is given, in which we have obtained characteristic equation like determinant A minus lambda equals to 0. So after solving the determinant in left hand side, we have a 3 order algebraic equation, and after solving this equation we got the values of lambda as -3, and 5. So after that we will obtain the eigenvectors corresponding to lambdas. So first of all we will find the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3. So for lambda equals to -3, our equation will be a minus lambda x equals to 0. So minus minus plus, so 3 will be added in the diagonal. 3 minus 2 is 1, 3 plus 1 is 4, 3 plus 0 is 3. So your equation is this. After that, I will get the equation like x plus 2y minus 3z is equals to 0, 2x plus 4y minus 6z is equals to 0, and minus x minus 2y plus 3z equals to 0. When right hand side is 0, so this is homogeneous equation. Okay. So to solve this, what we will do, we will find augmented matrix A and B. So this will be 1, 2, minus 3, 2, 4, minus 6, minus 1, minus 2, 3, 0, 0, 0. Okay. What you will do, you will make 0 this element or this element. So what you will do, R2 for R2 minus 2 R1 and R3 plus R1. So you can see that 1, 2 minus 3, 0, 0, 0, 2 minus 0, because 2 ones are 2, 2 minus 2 is 0, 2 twos are 4, minus 0, minus 6 when you will multiply by 2. So 3 twos are 6, minus 6, this is 0. And when you will add R3 plus R1, you will get 0, 0, 0. So from here you can see that rank of A is 1. What was non-zero rows? So there is only one non-zero row. So rank of A is 1 and rank of augmented matrix AB is also 1, which is same. So there is not equal to number of unknowns. Okay. Hence, there exist infinite number of solutions.
and your equation will reduce to x plus 2y minus 3z equals to 0. बाकी दोनों इक्वेशंस कैसी कन्वर्ट हो गई 0 0 0 में. तो जब आप इसमें सॉल्यूशन निकालोगे तो y और z दो को हमें देना पड़ेगा. सो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ, z की 0 रखूं. हेलो, is it clear now? Hello, is it clear now? Breaking in between. There will be some network issue if it is breaking, and it may be on your side or maybe on my side as well. Okay, so if I will put y equals to 1, z equals to 0, so your x will be, when I will put y equals to 1, so x is minus 2, and if I will put x is 0 and z is 1, so x is 3. So these are two Li vectors corresponding to lambda equals to minus 3. Hence, minus 2 1 0 लास्ट में दोबारा एक्सप्लेन करना. and 3 1 0 are two linearly, just a minute, independent eigenvectors corresponding to lambda equals to minus 3. Till here you got the point that you have only one equation. Okay, now to obtain the value of x, यहाँ देखो, यहाँ पे जब रैंक आपकी 1 आएगी, नंबर ऑफ अननोन 1 कितने हैं हमारे 3, तो इनका डिफरेंस कितना है 3 + 1 is 2. इसका मतलब there exist two linearly independent eigenvectors. You can write it here. Therefore, unknown minus rank of matrix is equal to 2 Li vector will exist here. मैम Yes. में 3 - 1 क्या है? 3 - 1 is 3 क्या था? Number of unknown and rank. जो इनका डिफरेंस होता है 3 - 1 is equals to 2. उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे हियर. ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन आई यहाँ से, जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x + 2y - 3z equals to 0. ठीक है, तो ये जो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर रखेंगे वो 1 0 और 0 1, तो z की वैल्यूज हम इस टाइप से चूज करेंगे. ठीक है, तो जब मैंने 1 0 रखा y और z की जगह तो x की वैल्यू -2 आ गई. जब मैंने 0 1 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई. सो -2 0 एंड 3 1 0 हमारे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो गए. मैम वेक्टर से इनफिनाइट बन जाएंगे. यस यस यस, इनफाइनाइट बन जाएंगे, लेकिन वो सब इसके मल्टीपल्स एग्जिस्ट करेंगे. मतलब कि आप इनकी हेल्प से बना सकते हो वो आइगन वेक्टर्स. जब मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आपको बताया था, तो लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है कि अगर आपके पास में x1 x2 x3 तीन वेक्टर हैं, तो अगर कोई भी k1 k2 आप ऐसे चूज कर सकते हैं so that, और ये कैसे होने चाहिए नॉन जीरो, कि k1 k2 k3 ये तीनों ही नॉन, मतलब इनमें से एक भी वेक्टर आपका नॉन जीरो हो जाए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो ये कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये हमारे नॉन जीरो होने चाहिए. तो इन दोनों से अलग जो भी वेक्टर एग्जिस्ट करेगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो वो कैसे आ जाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट आ जाते हैं. इंडिपेंडेंट हमारे दो ही एग्जिस्ट करेंगे. जैसे आपका कोई वेक्टर R3 का मीनिंग क्या है? हमारा x1
x2 x3, मतलब कि जो भी टपल, ये 3 टपल है तो ये R3 को बिलोंग करता है। तो इसमें जो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. These are three independent, linearly independent vector belong to R3. अभी आपने वेक्टर स्पेस जब आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है नहीं, तो जो वेक्टर स्पेस होता है वहां पे हम बात करते हैं वेक्टर में बेसिस की। तो बेसिस वो कलेक्शन होता है जिससे आपका पूरा R3 जनरेट किया जा सके। तो ये 3 वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हेल्प से पूरा R3 आप जनरेट कर सकते हो। R3 के हर एलिमेंट को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। तो ऐसे 3 वेक्टर जिनकी हेल्प से आप पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दो R3। आप Rn पढ़ते हो तो Rn के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस के वेक्टर्स होते हैं वो नंबर n होता है। तो Rn में n टपल एलिमेंट होगा, तो 1 0 0 अप टू 0 0 1 0 अप टू 0 इस मैम टाइप ये से समझ नहीं आया n पूरा। एलिमेंट। मैम हाँ मैम इस वाले में नहीं कह रहा, ऐसे ऊपर वाले में कह रहा जो आपने ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की वो जो हमें इक्वेशन दी थी आपने वो लगा दी, कंडीशन थी जो आपने बताई थी पिछली हाँ क्लास ये में। वाली, ये वाली हाँ जी, वो आपने लगवा दी इसमें। मुझे ठीक समझ है। आया कि वेक्टर वेक्टर आपने वेक्टर 3 निकाला, आप कह रहे हो कि ये इसी से ये निकलेगा। दोनों लीनियरली, हाँ, कि आपने कहा ना यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मैं तो आपने y आई, और z को मान लिया कि इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो क्योंकि उसको आप x ये की देखो टर्म में आपके पास निकालेंगे ना। एक ही इक्वेशन आई ना। आप ये आप बताओ, आप आप ये कह रहे हो ना तो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। हाँ बोलो। आपने y और z को x की टर्म में मान ढूंढ लिया यस, और फिर इक्वेशन एक्स लगा के की सॉल्व जो किया। वैल्यू है आप इसमें एक भी वेरिएबल ले लो, आप इसमें एक्स को छोड़ दो, यू कैन राइट कि भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3z माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। तो आपको x और z की वैल्यूज कुछ माननी पड़ेंगी तभी तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो x और z में भी तुम 1 0 0 1 मान के उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। मैंने y और z में इसको मैम कन्वर्ट पर कर वो तो लिया x वेरिएबल और होंगे z में। दोनों। मैम दोनों इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज तो। जिस भी फॉर्म में आप निकालोगे, जस्ट लाइक यहाँ इसमें पे मेरा हमारा, प्रॉब्लम ये है कि देखो ना x की जो आपने जो इक्वेशन बनाई 3z माइनस x वाली, मैं बैक करना हाँ, प्लीज। यस बोलो। हम उसमें z तो देखो वेरिएबल है ना, वो बदलता जाएगा। x की वैल्यू निकाल सकते हैं बस हम एक, वो भी z की टर्म में निकलेगी आखिर में आगे। यहाँ पे दो को आपको लिखना पड़ेगा। देर आर 3 अननोन्स आप एक्स ये कह रहे वाई हो कि एंड जेड। z को k मान लो और y को भी k मान लो। नहीं, आप दोनों सेम कैसे मान सकते हो? मैंने कब कहा एक्स और वाई को और तो y दोनों को को लैम्डा मान सेम? लो, उसको k मान लो, ये कह रहे हो ना आप। एग्जैक्टली, एक को k1 मान लो, एक को k2 मान लो, मैं फिर तो आंसर कहाँ आप से है थर्ड वो? वेरिएबल को फाइंड कर सकते मैं फिर हो। तो ये ये मैंने आंसर। वैल्यूज ली, ये ना स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैंने इसमें बताया था ना कि अगर आपका 3 टपल का वेक्टर है तो ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस होता है। तो यहाँ पे आपके देखो 2 वेरिएबल डिपेंड करते हैं, तो 2 की सिचुएशन में ये आपका हो जाएगा 1 0 एंड 0 1। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 0 और 0 1 कंसीडर किया। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 1 0 0 1 आपने कंसीडर करो, आप यहाँ पे आपने डबल लिया है ना, डबलेट लिया ना ये? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं, और हमें कैसे लिया है, क्यों लिया है ऐसा वाला वन क्योंकि जीरो ये जीरो स्टैंडर्ड बेसिस होता है। आप इसमें कुछ और भी वैल्यूज ले सकते हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या आई, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैंने इसको लिख लिया x विल बी माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है। अब मुझे पहला वेक्टर फाइंड करना है, मुझे y और z को कुछ वैल्यूज देनी पड़ेंगी। मैं 1 1 भी दे सकती हूँ, y को 1 दो, z को 1 दो, 3 माइनस 2 मैम इज हम एक्स को 1 आ वैल्यू गया। दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको एक ही बार, जैसे आपको 2 वेक्टर्स पता करने हैं तो y और z को अपने पास से दो, 2 वेक्टर को किसी को भी अपनी वैल्यू दे दो, थर्ड यहाँ से कैलकुलेट कर लो। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, अच्छा, मतलब y हम एक्स एंड वाई को भी दे सकते हैं? 3z माइनस की वैल्यू, तो मैं z और x को 1 दे दूं, z दिया 1, x दिया 1,
when you will give 1 1 here, so 3 minus 1 is upon 2 is also 1 आ गया ना, तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा सेम आ गया, इसलिए मैंने वहां पे स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करके 1001 लिखा था, जिससे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो मैं इस टाइप से कोई वैल्यू दूंगी ना, तो देखो ये दोनों सेम ही आ गए, लेकिन मुझे तो डिफरेंट लीनियरली आइगन वेक्टर्स चाहिए। इज इट क्लियर कि ऐसे करने पे मुझे सेम आइगन वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 1 दिया था y और z को, तो x की वैल्यू 1 आ गई थी। अब मैं y और z को कुछ और दे दूं, बताओ क्या दें। z को 0 रखो, y को 1 रख लो। जब मैं y को 1 रखूंगी तो ये कितना आ गया, -2, ठीक है। मतलब आपको दो वेरिएबल्स को कुछ भी देना है एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन। जब हम 0 और 1 देंगे, यहाँ 0 रखो, यहाँ 1 रखो, तो ये 3 आ गया। तो these are two linearly independent eigenvector, ठीक है। अगर हम ऐसे फाइंड कर रहे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड बेसिस यूज किया है जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इज इट क्लियर नाउ? अब हमारा नेक्स्ट आता है corresponding to lambda is equals to 5। मैम और एक बार आप प्लीज वो जो आपने क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं वो भी सिखा दो वापस कैसे किया। Okay, let me go to this equation, right? देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इफ यू हैव ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। लेकिन जब यहाँ पे आपकी क्वाड्रेट वो क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, तो हम हिट एंड ट्रायल से एक आपका जो रूट है वो फाइंड आउट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमने देखा, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, करेगा इस इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि ये -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 21 एंड 45 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। -1 देखो, -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस, +1 -1 कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे -21 प्लस 45 ये भी 0 नहीं होगा। फिर आपने 2 पुट किया, -2 पुट किया, 3 पुट किया, -3 सेटिस्फाई हो गया। मतलब जनरली इस टाइप की इक्वेशन में 5 से +5 तक आपको रूट मिल जाता है। अदरवाइज आपको इक्वेशन देख के पता चल जाता है कि हिट एंड ट्रायल से आपका एक रूट कौन सा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में जब हमारा लैम्डा इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -3 कब सेटिस्फाई करेगा, जब लैम्डा +3 हर टर्म से कॉमन आएगा, राइट। तो जितनी पावर की इक्वेशन होती है, अगर यहाँ 4 पावर है तो मैं लैम्डा +3 4 प्लेसेस पे लिखूंगी। अभी ये कितनी है, 3rd ऑर्डर की इक्वेशन है, तो मैंने 3 जगह लिख दिया, लैम्डा +3 लैम्डा +3 लैम्डा +3। उसके बाद में मुझे लैम्डा क्यूब की टर्म चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को इस वाली में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा क्यूब है तो मुझे -λ² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -λ क्यूब आएगा। उसके बाद ये कितना है, -3λ², बट यहाँ पे क्या -λ², तो -3λ² को -λ² बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, +2λ²। तो यहाँ पे +2λ लिख दिया, सो दैट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2λ² बन जाए, सो दैट +2 and -3λ² will reduce to -λ²। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा
6 लैम्डा, लेकिन यहाँ पे कितने 21 लैम्डा, तो कितने का डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मुझे प्लस के 15 लिखना पड़ेगा, सो दैट 15 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा विल रिड्यूस टू 21 लैम्डा। तो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, जो लास्ट वाली टर्म आएगी 15 3 45, दिस विल satisfy, so that lambda plus 3 can be taken as common, and you will have next product as minus lambda square plus 2 lambda plus 15। फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके मैम, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू eigenvector corresponding to lambda is equals to 5, so वो क्या हो जाएगा a minus 5 I x equals to 0, right? a क्या था हमारा, what was a, it was minus 2 minus 3, can I copy this, कोई मेरे को टर्म्स बोलेगा, -2 -3, -2 -5, can you please repeat what was a, मैम a was -2 2 -3। yes हम क्या लिख रहे हैं -5i, तो डायगोनल ठीक, से -5 हो जाएगा, ओके ठीक है। अब -3 होगा लास्ट में। ओके, -3 2 1 -6 2 1 -6, तो ये डायगोनल है, डायगोनल से -5 हो जाएगा, -5, ठीक है। ठीक है। थर्ड वाली ये क्या थी, -1 -2 0 है, वहां पे -5 हो जाएगा। -0 -1 -2 0 -5, ओके, तो ये क्या आ गया एंड x -7 2 -3 2 1 -5 is -4 -6 -1 -2 -5, and this is x y z equals to 0, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, so this is -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5 0 0 0, ओके। तो यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज वेरी टिपिकल, सो आई कैन इंटरचेंज R1 टू R3, ठीक है, एंड you can multiply R1 by minus, so this is, हम ऑगमेंटेड के अंदर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, ये देखो ना, यहाँ पे जब तुम रो इंटरचेंज कर सकते हो, रो इंटरचेंज करोगे यहाँ पे तो इक्वेशन तो फिर भी सेम रहेगी ना, बेस के साथ में आप चेंज ओके, कर रहे हो, आपने थर्ड ठीक है। इक्वेशन को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को थर्ड बना दिया, दैट्स इट, हाँ, और मैंने ठीक क्या किया माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, सो 1 2 5 0 2 -4 -6 0 and 7 -2 3 0, ओके। उसके बाद में मैंने R2 को लिख दिया R2 -2 R1 एंड R3 को R3 -7 R1, so I got 1 2 5 0, 2 2s are 4 2 -0 -4 -4 -8
-6 -10 is -16. 7 minus 7 is 0. 7 2s are 14 -16. 7 5s are 35. 3 minus 35 is -32. उसके बाद में मैंने R3 को लिख दिया R3 minus के 2R2. So this is equivalent to 1 2 5 0 0 minus 8 minus 16 0, and this is 0 minus 0 16 2 times multiply करोगे तो 0, 32 minus 0 0. तो यहाँ पे आपकी रैंक ऑफ ए कितनी आ गई? 2. ठीक है, which is less than number of unknowns. ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3. तो 3 minus 2 is equal to 1. Li solution will exist here. जब आप इस इक्वेशन को फॉर्म में लिखोगे x plus 2y plus 5z is equal to 0, minus 8y minus 16z equals to 0, right? इस इक्वेशन को यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ? थर्ड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ गई? 2z माइनस के, ठीक है, और x की वैल्यू -2y minus 5z, राइट? इस y को z की फॉर्म में लिखूं अगर मैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4z माइनस 5z इज माइनस के z. तो z की वैल्यू k पुट कर दिया. इफ आई विल पुट z इज इक्वल्स टू k, तो y की वैल्यू माइनस के 2k, और जब -2k और k पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? राइट, -k -z. अब आप k की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो. फॉर k is equal to 1, eigenvector is -1 -2 1, corresponding to lambda is equals to 5. मैम एक बार और बता दो, आपने 3 minus 2 1 क्यों लिखा और लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे है ये? देखो रैंक क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे 3 है, x y z, ठीक है. ठीक है. तो इनका जो डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 minus 2 इज एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सब इसके मल्टीपल्स होंगे. अब आप देखो, जब आपकी इक्वेशन आ गई x plus 2y plus 5z is equals to 0 minus 8y minus 16z is equals to 0, तो z हमारा इंडिपेंडेंट है. z को मैंने k पुट किया तो z की हेल्प से y और x की वैल्यूज आ गई. तो अब k की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे वो सब क्या होंगे? इसके मल्टीपल्स ही तो होंगे. भाई k हर टर्म से कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया? -1 -2 1. तो जितने भी एग्जिस्ट करेंगे k की हर वैल्यू के लिए वो एक ही तो वेक्टर के मल्टीपल्स होंगे सब. ठीक है, इससे पहले वाले जब हमने -3 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला था, वहां पे जितने भी आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे वो उन जो हमारे 2 आए थे बाद में आइगन वेक्टर्स, वो सब उन्हीं के मल्टीपल्स होंगे. यहाँ पे भी जब आप k की फॉर्म में लिखोगे ना, k1 k2 की फॉर्म में, x plus 2y minus 3z, ठीक है, x plus 2y minus 3z is equals to 0. तो y को मैंने k1 कंसीडर किया एंड z को मैंने k2 कंसीडर किया. ठीक है, तो इफ इट इज
K1, it is K2, then your X will be K1 minus 2K1 plus 3K2. तो आप जितने भी यहाँ पे वेक्टर्स बनाओगे वो सब K1 और K2 पे डिपेंड करेंगे। तो हम K1 यहाँ पे दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये -210 एंड 310। एक बार K1 और K2 की वैल्यू मान के आप फाइंड करोगे। तो एक बार मैंने 1-0 कॉम्बिनेशन ले लिया, एक बार 0-1 कॉम्बिनेशन ले लिया, तो मेरे ये वाले सॉल्यूशंस आ गए। तो हम K1 और K2 की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, तो इनफिनाइट होंगे वो तो। हाँ, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इंडिपेंडेंट दो ही होंगे। जैसे यहाँ पे भी k की वैल्यू के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ना, यहाँ पे k की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो लेकिन वो सारे k के मल्टीपल्स होंगे, तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वो एक ही कर रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं एक बार k1 को 0 पुट करूं, k1 को 0 पुट किया तो मेरा आ गया 3k2 0 k2, ठीक है। ठीक है। k1 को 0 पुट कर 2k1 k1 0, तो यहाँ से इसको कॉमन लो, k2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो तो k2 301 0 1 एंड माइनस, k1 माइनस ठीक है। 2 1 0। तो ये k1 और k2 की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए जितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो सब इनके मल्टीपल्स होंगे, तो दीज आर स्टैंडर्ड। तो बाकी ठीक है जितने भी करेंगे वो सब इन्हीं पे डिपेंड करेंगे, तो इंडिपेंडेंट जो वेक्टर है वो यही दो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया मैम। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, परफेक्टली फाइन। यस मैम, थैंक तो यू। अब एक क्वेश्चन करो, इसका फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं कराती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अब तुम एक क्वेश्चन करो, अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो लिखो फाइंड the eigenvectors and eigenvalues for find eigenvalues and eigenvectors of matrix A is equals to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। बताओ इस लैम्डा क्या आ रहे हैं एंड देन उनके कोरस्पॉन्डिंग x क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3। Do it and let me know what are the values of lambda. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ eigenvalues in next class. Now solve A and B and let me know what are lambda and corresponding x. Do it fast and tell me the values of lambda and corresponding x.
Roll number 213. 213. सौम्यदीप प्रेजेंट मैम। क्वेश्चन हो रहा है, क्या ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? 8 माइनस ओके। भावेश भावेश Present, ma'am. क्वेश्चन आया, क्या आ रही है इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? भावेश, आर यू डूइंग इट? सौम्यदीप एंड भावेश, क्या आ रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? गौरव गौरव कैन यू प्लीज टेल मी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रही है? All of you, can you please tell me, any one of you, क्या आ रही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? Ma'am, can I? Yes, sure. Lambda cube minus 18 lambda square plus 45 lambda minus 56 is equals to 0. Okay, and after solution, what are the values of lambda? And that I have not calculated. Okay, please calculate and let me know.
अब मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा, ये सही है, इज इक्वल टू 0। मुझे रूट्स बताओ इसके सॉल्व करके। कैन यू प्लीज टेल मी द रूट रूट्स? निकल नहीं रहे मैम, ट्राई टू रूट्स फाइंड मेरे, आउट। एक सेकंड में देखता हूँ करके। श्योर। मुझे आपकी शायद इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट वाली का एक रूट 0 है। हाँ 0 आ गया मैम, 0 आ गया, लैम्डा कॉमन लूंगा तो मेरा इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, एक 0 आ गया, बाकी क्वाड्रेटिक बची, उसका रूट बताओ क्या आ रहा है। मैम उसका डायरेक्ट स्प्लिट से नहीं हो रहा, वो डी से निकालना पड़ेगा, वो जो हाँ डी हाँ वाला। बिल्कुल। Ma'am, Yes. ma'am, the values of lambda for A is 0, 15 and 3. 0, 15 and 3, perfectly fine. इनके corresponding x निकालो। Yes, ma'am, doing it right away. Okay. Ma'am, the values of lambda are correct or not? Sorry. Which I have not. Yes, they are correct. 0, 3 and 15 are correct. Okay, ma'am. Yes.